বরাক দর্পণ স্টুডিও। নমস্কার, নিজ বরাক দর্পণ স্টুডিও থেকে সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা। গতকাল শিলচর হাইলাকান্দি রোড আসাম প্যালেসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মধ্য শিলচর উপনগরের ব্যবস্থাপনায় বিকাল 3:30 বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই মহতী অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি অমৃতলাল ঘোষ মহাশয়, ক্ষেত্র প্রচার প্রমুখ অসম ক্ষেত্র ডক্টর সুনীল মহান্তি, প্রান্ত সঞ্চালক শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাময় চক্রবর্তী এবং নগর সংঘ চালক প্রণব পাল মহাশয়। এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক পর্যায়ে সংঘের প্রশিক্ষিত কর্মকর্তারা শরীরচর্চা সহ সংঘের পরম্পরাগত সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে কার্যক্রম গতানুগতিকভাবে পরিচালনা করা হয়। এই বিজয় সম্মেলনে কয়েক শতাধিক পুরুষ ও মহিলা সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দেশমাতৃকার প্রতি অগাধ ভালোবাসার ফলস্বরূপ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে বিজয়া সম্মেলনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলেছেন। মঞ্চে উপবিষ্ট সংঘের উচ্চস্তরীয় কর্মকর্তারা যে সকল মূল্যবান বক্তব্য পরিবেশন করেছেন তা অনেকের চিন্তাধারাকে নতুন দিশায় পরিচালিত করবে সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্থাপনা, আদর্শ ও লক্ষ্য কি তা কাহারও বুঝতে অসুবিধা হয়নি। সংঘের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে অনেক ঘাত প্রতিঘাত এবং অনেক আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে দেশের সেবায় যুক্ত থেকে মহান ভারত মাতাকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সংকল্প নিয়েছে। অনুষ্ঠানের বিশেষ কিছু মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেছি। অবশ্য সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন এবং লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। ভারত মাতা কি জয়। নমস্কার। वीरभद्रासन प्रकार 2, वीरभद्रासन प्रकार 2। और 1 2 এবারে ব্যায়াম যোগ। যুগ ক্রমাঙ্ক 3, যুগ ক্রমাঙ্ক 3 গুরু। যুগ ক্রমাঙ্ক 4, যুগ ক্রমাঙ্ক 4 গুরু। एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन चार। सामर्थ्यता प्रयोग 2, सामर्थ्यता प्रयोग 2 करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सामूहिक क्षमता प्रयोग 3 सामाजिक सद्भाव जगाए अपने प्रेम परिश्रम केवल भारत में नव सूर्य उगाए जाग रहा है जनगण मन বর্ষব্যাপী উৎসবের প্রথম আয়োজন বিজয়া সম্মেলন। আজ বিজয়া সম্মেলনে মঞ্চে উপস্থিত আছেন মঞ্চের বাম দিক থেকে মাননীয় ক্ষেত্র প্রচার প্রমুখ আসাম ক্ষেত্র ডক্টর সুনীল মহান্তি মহোদয়। তিনি আজকের উৎসবের উদ্যোক্তা। ওনার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা MA, MPhil এবং PhD ইন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি। ব্যক্তিগত জীবনে দিল্লি ইউনিভার্সিটি থেকে অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। দিল্লি ইউনিভার্সিটি থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র দেওয়ার পর দিল্লি থেকেই প্রচারক জীবনের আরম্ভ। জন্মভূমি উড়িষ্যা বালেশ্বর। ঠিক বাম দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে বসে আছেন আমাদের মাননীয় প্রান্ত সঞ্চালক শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাময় চক্রবর্তী মহোদয়। ওনার নিবাস শিলচর আশ্রম রোড। সঙ্গে তৃতীয় বর্ষ শিক্ষিত। ব্যক্তিগত জীবনে পাওয়ার গ্রিড নামক সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গে সাথে তিনি স্বয়ংসেবক। মঞ্চে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ মহোদয় বসে আছেন তৃতীয় স্থানে। তিনি আজকে বিজয়া সম্মেলনের মুখ্য অতিথি। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা PhD ইন ফাইন্যান্স। বর্তমানে আসাম ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর পদে কর্মরত, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট। পূর্বতন ডিন আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর। ওনার স্বলিখিত বই শিক্ষার প্রসঙ্গ এবং স্পিরিট অফ এন্টারপ্রেনিয়রশিপ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান নিবাস উদয়াচল লেন, ন্যাশনাল হাইওয়ে। মঞ্চে বাম দিক থেকে চতুর্থ স্থানে বসে আছেন মাননীয় নগর সংঘচালক শ্রীযুক্ত প্রণব পাল চৌধুরী মহাশয়। ওনার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পদার্থবিদ্যা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। বাল্যকাল থেকে স্বয়ংসেবক। ইউকো ব্যাংক থেকে অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক। তিনি প্রান্তে ব্যবস্থা প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছেন। সঙ্গে তৃতীয় বর্ষ শিক্ষিত। বর্তমান নিবাস বিবেকানন্দ রোড, শিলচর। ঐক্যবহিত করে প্রস্তাবিক এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন মধ্য শিলচর উপনগরের কার্যবাহ শ্রীযুক্ত কিষাণ রায়। তারপর সুভাষিত অমৃত বচন, একক গীত, প্রধান অতিথির সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এবং মুখ্য বক্তার বৌদ্ধিক প্রদান। যুবক সংঘের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে মধ্য শিলচর উপনগরের আয়োজিত বিজয়া সম্মেলন কার্যক্রমে মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি মাননীয় শ্রী অমৃতলাল ঘোষ মহাশয়, উপস্থিত দক্ষিণ আসাম প্রান্তের মাননীয় সংঘচালক শ্রী জ্যোৎস্নাময় চক্রবর্তী মহাশয় এবং শিলচর নগরের মাননীয় সংঘচালক শ্রীযুক্ত প্রণব পাল চৌধুরী মহাশয়, উপস্থিত আজকের প্রধান বক্তা ডক্টর সুনীল মহান্তিজি, আসাম ক্ষেত্রের প্রচার প্রমুখ, উপস্থিত সকল স্বয়ংসেবকগণ, মধ্য শিলচর উপনগরবাসী, নাগরিকবৃন্দ ও মাতৃমণ্ডলী,
আজকের এই বিজয়া সম্মেলনে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমাদের এই উপনগরের বয়স মাত্র 2 বছর। এই উপনগরের মোট 7টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। এই উপনগরে আমাদের মোট শাখার সংখ্যা 4টি এবং সাপ্তাহিক মিলন 2টি। প্রায় 300 জনের উপরে স্বয়ংসেবক এই উপনগরে বসবাস করেন। এছাড়া সংঘের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের এই উপনগরের কার্যকর্তারা দীর্ঘদিন ধরে সংঘ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চলছেন। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বিগত 2রা অক্টোবর 2025 ইংরাজি বিজয়া দশমীর পবিত্র তিথিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। সংঘের এই শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বর্ষব্যাপী গৃহীত 7টি কার্যক্রমের প্রথম কার্যক্রম আজকের এই বিজয়া সম্মেলন। যে কোনো সংগঠনের পক্ষে 100 বছর সময়কাল অতিক্রম করা খুব সহজ কথা নয়। মহাশক্তি রূপিণী দেবী দুর্গার আশীর্বাদ ও সমাজের সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসা ব্যতীত এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সনাতন কাল থেকেই হিন্দু সমাজের স্বাভিমান ও পৌরুষের জাগরণ বিজয়া দশমী উৎসবের মাধ্যমে সূচিত হয়েছে। তাই এই সময় শুধু আনন্দের নয়, যথার্থ অর্থে সংকল্প গ্রহণের সময়ও। আসুন সংঘ কাজে সার্বিক যোগদানের মাধ্যমে নিজ জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতিকে রক্ষা করে ঈশ্বররূপী এই সমাজকে সংগঠিত করার কাজে মহত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করি। পরিশেষে আজকের এই সম্মেলনে আমাদের এই স্থানটি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে যারা আমাদের সাহায্য করেছেন সেই কর্তৃপক্ষকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। এই কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সার্বিকভাবে সহযোগিতার হাত যারা বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সংঘের ডাকে সাড়া দিয়ে এই মধ্য শিলচর উপনগরের বিভিন্ন দূরবর্তী স্থান থেকে যারা এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সবাইকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ভারত মাতা কি জয়। यत् करोमि राष्ट्रमाता तदस्तु तव पूजनम। অর্থ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত আমি যা কিছুই করে থাকি না কেন, হে রাষ্ট্রমাতা, তাহা যেন তোমার পূজা হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রদেবার দেবতার উপাসনাতে ব্রত আছে। অতএব তন, মন, ধন, বুদ্ধি, চেয় তথা যা কিছু ঈশ্বরের কৃপায় আমরা পেয়েছি সব তার জন্য সমর্পিত। এইরকম বিশুদ্ধ মনোভাব আমাদের অন্তঃকরণে আমরা গুরুত্ব সহকারে বিকশিত করব। ইহার কখনো যেন বিস্ফোরণ না ঘটে। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतांगमय। शांति शांति शांति। मंच उपस्थित श्रद्धेय সরলজি, রচনাজি, পৈতরজি, আমার সামনে উপস্থিত সকল বয়োজ্যেষ্ঠরা, আমার দাদারা, মাতৃমণ্ডলী এবং সঙ্গে সকল ভাই বোনেরা, সকলকে আমার আন্তরিক নমস্কার, শ্রদ্ধা। আজকে আমরা এখানে সুন্দর একটা অনুষ্ঠান বিজয়া সম্মেলনে একত্রিত হয়েছি। বিজয়া সম্মেলন তার উপলক্ষ হচ্ছে সঙ্গের 100 বছর পূর্তি। বাংলাতে হবে, যদি অসুবিধা হয় তাহলে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ, বাংলাতে মনে হচ্ছে ঠিক আছে তো? ঠিক আছে। তো 100 বছর সংঘ পেরিয়ে এলো,
সেই 100 বছর সূচনা করেছিলেন যে ডক্টর হেগড়েজি, ওনাকে অবশ্যই আমাদের সশ্রদ্ধ দেবেন। তো উনি 100 বছর আগে বুঝতে পেরেছিলেন যে আমাদের সমাজের প্রয়োজনটা কি, সেটাকে এগিয়ে নিয়ে গেছিলেন গুরুজি, এবং এখনো সেই পরম্পরা এগিয়ে যাচ্ছে। বিজয়া সম্মেলনে আমরা প্রত্যেকেই জানি কি অশুভের উপর শুভের জয়, সেই জয়টাকে আমরা উৎসাহের সঙ্গে পালন করি। তো এই যে অশুভ, সেই অশুভটা কি এবং শুভটাই বা কি, সেই ব্যাপারে আমরা যখন পরিষ্কার থাকব তখনই কিন্তু আমাদের শুভের দিকে আমরা এগিয়ে যাব আর অশুভটাকে দমন করব, সেটা আমাদের দরকার। আমরা যখনই অশুভের জয় জয়কার দেখি তখনই আমরা বলি সমাজের অনেক অধঃপতন, নিচে নেমে যাচ্ছে, এই হচ্ছে সেই হচ্ছে, আমরা শুনি, আমরা সকলে আলোচনা করি। সেই যে সমাজের অশুভ দিকটা, সেটা কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে আমরা বাইরে খুঁজি। প্রতীক হিসাবে আমরা বলি মা দুর্গা অসুর দমন করলেন, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আসরিক প্রবৃত্তি, সেটা আমাদের নিজেদের মধ্যেই আছে, এবং দৈব যে সম্পদ সেটাও আমাদের মধ্যেই আছে। তো আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের ভিতরে না খুঁজে বাইরে, এটা খারাপ, ওটা খারাপ, সে খারাপ, সে ভালো, আমরা বাইরে আসরিক প্রবৃত্তিগুলোকে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি। সেই জিনিসটার থেকে আমরা যাতে পরিত্রাণ পাই, তাই স্বামী বিবেকানন্দ পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, মানুষ চাই মানুষ আর সব হইয়া যাইবে, ম্যান ম্যান দিজ আর ওয়ান্টেড, এভরিথিং এলস উইল বি রেডি। সেই মানুষ তৈরি হবে, দেশের এবং সমাজের কাজ করবে। সেই জিনিসটাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য 100 বছর আগে আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্থাপনা করেছিলেন পূজনীয় ডাক্তারজি। সেটাকেই আমরা এগিয়ে 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 নিয়ে যাওয়ার কথা, এবং আমরা যাচ্ছি, অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছি। তবে আজকের এই বিজয়া সম্মেলন, সেটা 7টা 100 বছর উপলক্ষে 7টা প্রোগ্রাম হবে। তার প্রথমটা, সেই বিজয়া সম্মেলনটা আমাদেরকে সঠিক অর্থে যদি আমরা সেটাকে গ্রহণ করি এবং যদি আমরা তার স্পিরিটটাকে ধরে রাখতে পারি, তাহলেই কিন্তু আমাদের এই যে 100 বছর যাত্রা, 100 বছর অনেকেই বলেন 100 বছর হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা আশাবাদী, আমরা বলি ঠিক আছে 100 বছর হয়েছে, অনেক পরিবর্তন হয়েছে, আরো অনেক পরিবর্তন হবে। সেই পরিবর্তন আনার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই অশুভকে আমাদের নিজেদের মধ্যে খুঁজে বার করতে হবে। খুবই মজার ব্যাপার যে আমরা সেই অশুভকে নিজেদের মধ্যে আমরা দেখতে চাই না, বা দেখতে পারি না, বা দেখার ইচ্ছা করি না। তাই আমাদের যে অশুভ ভিতরে আসরিক প্রবৃত্তি, সেটা মাঝে মধ্যেই যেন মাথা চালা দিয়ে ওঠে আর দৈব শক্তি নিচে পড়ে যায়। আর ট্রিটমেন্টই বা করাবে কি করে, আর সে সুস্থই বা হবে কি করে? প্রথম আমাদেরকে নিজেদেরকে ভিতরে, এই বিজয় সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য নিজের আসরিক প্রবৃত্তিকে জয় করা, বিজয় প্রাপ্ত করা। আমরা প্রত্যেকে যদি নিজেদের বুকে হাত দিয়ে, এখানে ভগবান আছেন সর্বশক্তিমান, আমরা নিজেরা যদি খুঁজি, আমরা অবশ্যই খুঁজতে পারবো যে আমাদের মধ্যে কোথাও কিছু আসরিক প্রবৃত্তি আছে। তো আমরা আজকে এই বিজয় সম্মেলনে একটু আগে শুনছিলাম যে সংকল্প, সেই সংকল্প যদি আমরা আজকে নিতে পারি প্রত্যেকে, শুধুমাত্র সঙ্গের আমাদের স্বয়ংসেবক না, আমরা প্রত্যেকে
কারণ আমরা প্রত্যেকেই সমাজের এক একটা অঙ্গ। প্রত্যেকে যদি আমরা সংকল্প নিই যে হ্যাঁ, আমার মধ্যে যে ছোট্ট আসরিক প্রবৃত্তি আছে বা যেগুলো আছে তাদেরকে আমরা কিভাবে দমন করব এবং দৈব শক্তিকে আমরা কি করে জাগিয়ে তুলব। মজার ব্যাপার আমরা বলি যে বাইরে আমরা যতই ক্রিটিসাইজ করি, বাইরের আসরিক শক্তিকে কোথাও কোনোভাবে দমন করা যাবে না যদি নিজেদের ভিতরের আসরিক শক্তিকে আমরা দমন করতে পারি। প্রত্যেকটা মানুষ, যেটা হেগড়েজি চেয়েছিলেন, আমাদের গুরুজি চেয়েছিলেন, আমাদের সঙ্গ সাধকরা আমরা প্রত্যেকে কি হব, চরিত্রবান মানুষ হব এবং নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কাজ করে যাব। আপনারা করছেন নিঃস্বার্থভাবে, কিন্তু তার মধ্যে থেকে ওই যে কোথাও যেন একটা উঁকি মেরে দেয়, ওই উঁকি মারাটাই হচ্ছে আসরিক প্রবৃত্তি। যেমন সিম্পল কি উঁকি মারে, আমি একটা এই পদে উঁকি মারি, স্বাভাবিক মানুষের প্রবৃত্তিতে মারে। সেটাকে যদি কন্ট্রোল করে আমি একজন স্বয়ংসেবক, সুনীলজি ভালো চাকরি ছেড়ে সেবা করছেন কেন, সেটাই তো নিঃস্বার্থ সেবা। এই যে এত এত বয়স, 80 বছর পেরিয়ে গেছে, সেবা করছেন, এটাই নিঃস্বার্থ সেবা। সেই নিঃস্বার্থ সেবা ভাব যদি আমরা জাগিয়ে তুলতে পারি, তবেই কিন্তু আমরা আরো আরো বেশি করে আমাদের দেশ মাতৃকার জন্য কাজ করব। আমরা প্রত্যেকেই আমরা আজকে স্বীকার করব আমাদের দেশ মাতৃকার সেবা করার এখনো অনেক 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 সুযোগ আছে, অনেক সুযোগ আছে। এবং তার জন্যই হয়তো আমাদের একটা সংকল্প এসছে 2047 আমরা ডেভেলপ নেশন হব। কিন্তু ডেভেলপ নেশন হওয়ার মানেটা তো আমাদের জানতে হবে। ডেভেলপ নেশন যদি আমরা হতে চাই, ডেভেলপ কান্ট্রি যদি আমরা হতে চাই, আমরা হিউম্যান রিসোর্স, মানব সম্পদ যদি ডেভেলপ না হয়, তাহলে ঘর বাড়ি বিল্ডিং বানিয়ে ডেভেলপ করা যায় না। সেটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার। এবং এই ব্যাপারগুলো চিন্তা করেই হয়তো বিজয় সম্মেলন রাখা হয়েছে, যাতে আমাদের মধ্যে সেই চেতনা জেগে ওঠে, আমরা যেন বিজয়ে প্রাপ্ত হতে পারি। যদি আমরা বিজয়ী হই, তারপরে নিজের আসরিক প্রবৃত্তির উপরে দৈবী সম্পদে যদি আমরা জয়ী হই, তাহলে অবশ্যই 2047 সালে আমার দেশ উন্নত দেশের তালিকায় ঢুকে যাবে। সেটা संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ति उपलक्ष्य में मध्य सिलचर उपनगर के स्वयंसेवकों के द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक विजय सम्मेलन में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, माननीय दक्षिण आसाम प्रांत के संघ चालक महोदय, माननीय नगर संघ चालक महोदय, आज की इस शतवार्षिकी पूर्ति उपलक्ष्य में बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति, जो कि हमारे सभी स्वयंसेवकों को आशीर्वाद देने के लिए साक्षात दुर्गा माता के अंश लेकर यहाँ उपस्थित हुई हैं। सिलचर नगर के अलग स्थानों से आए हुए सभी गण्यमान्य सज्जन मंडली तथा प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, आज एक अत्यंत ऐतिहासिक दिन है। भारत की सनातन इतिहास में
जिस सनातन इतिहास के बारे में इतिहासकार हिस्टोरियंस जिसका डेट ऑफ बर्थ, कब ये सनातन सभ्यता प्रारंभ हुआ, उसका जन्म तिथि बता नहीं सकते हैं। और स्वाभाविक है, चूंकि सनातन है, नेवर एंडिंग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इंडिया वेयर देयर इज नो फुल स्टॉप्स, भारत जहां कभी फुल स्टॉप गिरती नहीं है। एक वाक्यों में, सेंटेंस में फुल स्टॉप गिरने का अर्थ वाक्य समाप्त हो गया, लेकिन भारत की सनातन संस्कृति सभ्यता में वह वाक्यों में कभी कॉमा तो गिर सकता है, लेकिन पूर्ण विराम फुल स्टॉप नहीं गिरा है भारतीय इतिहास में। और ऐसे सनातन इतिहास में संघ 1925 में जो एक महान यात्रा करते हुए आज 100 वर्ष पूरा कर रहा है, उस सनातन प्रवाह को संजीवनित्व प्रदान करने हेतु वह वास्तव में भारत के इतिहास में एक अभूला क्षण है, एक मोमेंटरी पड़ाव है। और उस दृष्टि से आज आप लोगों को सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में संघ को आशीर्वाद देने के लिए, संघ के साथ सहभाग होते हुए कंधे से कंधा मिलाकर के जो राष्ट्र की यज्ञ में भागीदारी लेने के लिए यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं सभी को बधाई दे रहा हूं, अनेक अनेक शुभकामना दे रहा हूं। संघ क्यों शुरू हुआ, यह जानना बहुत जरूरी है। संघ को शुरू करने वाले हम सबको पता है कि पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार थे, जो कि आज की जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में नागपुर में 1889 वर्ष प्रतिपदा के दिन उनका जन्म होता है। और उनके जन्म से ही वो देशभक्त थे, जिसको कहते बॉर्न पैट्रियट, जन्मजात देशभक्त। और एक उदाहरण उनके जीवन में आता है, जब छोटे बालक अवस्था में कक्षा में पढ़ते हैं, उस समय में महारानी एलिजाबेथ, जो एक इंग्लैंड की रानी थी, उनकी जन्म 60th बर्थ एनिवर्सरी के लिए पूरे देश भर में स्वागत संवर्धना आयोजित हो रही थी। उस समय में बालक केशव, छोटा बालक केशव अपना स्कूल में जाता है। स्कूल में स्वागत संवर्धना के लिए मिठाई बांटी जाती है। केशव पूछता है ये मिठाई किस खुशी में दी जा रही है। जब उसको पता चलता है कि रानी की, ब्रिटेन रानी की जन्मदिन की खुशी में दी जा रही है, तो उसके मन में स्वाभाविक, छोटा बालक के मन में एक प्रश्न आता है, जो कि बाकी बालकों के मन में नहीं आता है। अस्वाभाविक था वास्तव में कि विदेशी रानी, जो कि हमको गुलाम बना करके देश को शासन कर रही हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग कैसे खुशी मनाएंगे। और वो मिठाई लेता है, मिठाई पैकेट को कूड़ेदाने यानी कि डस्टबिन में फेंक देता है। बाद में और थोड़ा बड़ा होने के समय में स्कूल में, उस समय में वंदे मातरम की आंदोलन पूरे देश व्यापी चल रहा था, बंग भंगों को समाप्त करने के लिए। और उसने स्कूल के सभी शिक्षार्थियों को, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करते हुए स्कूल में आने वाले जो अंग्रेज इंस्पेक्टर थे, निरीक्षक थे, और उनके सामने वंदे मातरम का उद्घोष सांघिक करता है। एक साथ में सब मिलकर के करते हैं। और उस दृष्टि से स्कूल को साइन डाई कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है।
1 महीना तक स्कूल सस्पेंशन के बाद बालक केशव के मन में ये विचार आता है कि मेरे कारण ये बाकी बच्चों की पढ़ाई में हानि क्यों होगा। इसीलिए वो जाकर के स्कूल में कन्फेस करता है, आत्मस्वीकृति देता है कि मैं ही हूं जो सबको इकट्ठा करके वंदे मातरम का उद्घोष कराया था। जो दंड देना है, पनिशमेंट देनी है तो मेरे को दीजिए, बाकी बच्चों को नहीं स्कूल खोलना चाहिए। और उसको स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है बालक केशव को। वो वहां छोड़ करके अमरावती में अपनी पढ़ाई आगे करता है। फिर और 12th पास करने के बाद, उच्च श्रेणी में पास करने के बाद आगे हायर स्टडीज के लिए MBBS डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए विचार करता है। आप स्वयं सोचिए, महाराष्ट्र का व्यक्ति, मराठी स्पीकिंग व्यक्ति, मुंबई में इतने बड़े बड़े MBBS कॉलेजेस हैं, लेकिन वो मुंबई चुनता नहीं है अपने स्टडी के लिए, वो चुनता है कलकत्ता। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि कलकत्ता उस समय में स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारियों का हृदपिंड था, हार्ट था। इसीलिए वह कलकत्ता चुनकर के वहां पढ़ाई करता है, MBBS की पढ़ाई। 1914 में MBBS को फर्स्ट डिवीजन में पास करता है, लेकिन नौकरी नहीं करता है। उसकी नौकरी, सरकारी नौकरी उस समय में रैंगून में हो जाता है, लेकिन उसने अपने प्रिंसिपल को बताता है कि मेरा जीवन का उद्देश्य सरकारी बड़ी नौकरी नहीं करनी है। जब देश गुलाम है उस समय में मैं देश को आजाद कराऊंगा, उसके लिए मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। ऐसा कहकर के वो नौकरी को ठुकरा देता है। अपने मामा जी को 1914 में पत्र लिखता है कि मामा जी, मैंने अपना जीवन का लक्ष्य, मिशन तय कर लिया है और मैं जीवन भर शादी नहीं पूर्ण करूंगा, आजीवन अविवाहित रह करके इस देश मातृका के लिए मैं अपना संपूर्ण जीवन को समर्पित करूंगा, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। और फिर वो नागपुर आता है वापस। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उसको व्यथित करता है। वह प्रश्न था कि हमारी भारत माता जो सदियों से विश्व गुरु रही है, संपूर्ण विश्व को सभ्यता संस्कृति का मार्गदर्शन की है, और शूरवीरों की कमी नहीं इस भारत में, सोने की चिड़िया कहा जाता था इस भारत माता को, लेकिन आखिर भारत गुलाम हुआ क्यों? ये मौलिक बेसिक प्रश्न के ऊपर वो व्यतीत होता है, चिंतन करता है, मनन करता है, मंथन करता है। और ये 10 वर्ष 1914-15 से लेकर के संघ संस्थापना 1925 में, ये 10 वर्ष संपूर्ण भारत का भ्रमण करता है। भारत के इतिहास का, साहित्य का, भारत के बारे में समझदारी रखने वाले श्रेष्ठ महापुरुषों को मिलता है, क्रांतिकारियों को मिलता है, स्वतंत्रता संग्रामियों को मिलता है, यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे श्रेष्ठ स्वतंत्रता संग्रामियों को ये केशव, तरुण केशव मिलता है। मिलकर के वही प्रश्न पूछता है कि आखिर मेरा देश गुलाम हुआ क्यों? और 10 वर्ष की इस प्रकार की गहन अध्ययन, चिंतन मंथन, लोगों का अनुभव प्राप्त करके उसके मन में एक ही विषय आ गया कि आखिर जो उत्तर क्या है, हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि हम सभी दृष्टि से शीर्ष स्थान पर, विश्व गुरु के स्थान पर रहने के बावजूद भी हम लोग जो हैं, और एकता हमारे में कमी थी, यूनिटी की कमी थी, हम डिसयूनाइटेड थे, डिसऑर्गेनाइज्ड थे, संगठित नहीं थे, और एक व्यक्ति, हर व्यक्ति स्वार्थी बन गया था। खुदगर्जी जिसको कहते हैं, सेल्फ सेंट्रिक। स्वयं के इर्द गिर्द में मैं, मेरा बच्चे, मेरे परिवार, ज्यादा से ज्यादा मेरा गांव, और उससे ऊपर सोचने के लिए वो उसका जो दृष्टिकोण नहीं जाता, सेल्फ सेंट्रिक हो गया था। और फिर समाज की दृष्टि से, एक राष्ट्र के दृष्टि से शत्रु कौन है, हमारे राष्ट्र का शत्रु कौन है, हमारे समाज का मित्र कौन है,
यह शत्रु मित्र भाव उसके अंदर नहीं आ पाया। एक समाज के नाते भारत वो भूल गया। इसीलिए मेरे लिए पर्सनली व्यक्तिगत दृष्टि से कोई मित्र हो सकता है, मेरा फायदा कर सकता है, लेकिन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अगर वो दुश्मन है, उसके साथ भी वो हाथ मिलाने के लिए और पीछा नहीं हटता था। शत्रु मित्र भाव अभाव के कारण और फिर शक्ति आराधना। हमारे भारत विश्वगुरु हमेशा रहा है। यहाँ क्षात्र तेज ब्रह्म तेज दोनों के सिंथेसिस समिश्रण से भारत हमेशा विश्वगुरु रहा है। जहां क्षात्र तेज कहीं समाप्ति हो गया या ब्रह्म तेज कोई समाप्ति हो गया, तो दोनों में कोई एक चीज की कमी के कारण भारत विश्वगुरु के सिंहासन पर पदच्युत हुआ है। ये उसको ध्यान में आ गया। इसीलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों के सम्मिश्रण से और भारत विश्वगुरु रहा है। कहीं ना कहीं संगठन के अभाव के कारण हम शक्ति से पदच्युत हो गए और इसीलिए भारत गुलामी के जंजीर में चला गया। और उस दृष्टि से उसने सोचा कि इसके लिए उपाय क्या, समाधान किया, व्हाट इज द रिमेडी। और फिर उसने छोटे से शाखा से प्रारंभ किया। 1925 विजयादशमी दशहरा के दिन के पवित्र दिन को उसने चुना। क्यों चुना? उसने केवल एक अच्छे दिन, पवित्र दिन ऐसा नहीं था। केशव ने ध्यान किया जब जब भारत की पदच्युति हुई है, संगठित शक्ति के माध्यम से भारत उस पदच्युत स्थान से और उच्च स्थान पर, शिखर पर पहुंचा है। चाहे वो रामायण के समय में भगवान राम ने, वनवास के समय में सामान्य वन में रहने वाले वानर और वानरों को संगठित करते हुए उस समय में सुपर पावर लंका और उसका जो शासक था रावण को पराजित करता है संगठित शक्ति, वानरों के संगठित शक्तियों के माध्यम से। ऐसे ही महाभारत समय में पंचु पांडव द्रौपदी शक्ति के माध्यम से, द्रौपदी शक्ति केंद्र है और पंचु पांडव उस दृष्टि से ऑर्गेनाइज होते हैं, आपस में कलह नहीं होता है, एक मिशन लेकर के अधर्म का नाश करते हैं, जबकि उनकी शक्ति उनके साथ कम संख्या के सैनिक थे। तो जब जब भारत पदच्युत हुआ संगठित शक्ति के माध्यम से, भारत पुनः अपने जो सिंहासन पर, गौरव के सिंहासन पर स्थापित हुआ है। इसीलिए उसने ऐसा दिन चुना जिस दिन संपूर्ण देव शक्ति जब अपना हार को लेकर के और निराश हो गए थे और संगठित शक्ति के माध्यम से दुर्गा माता को और सृजन करते हैं और उसके माध्यम से अधर्म रूपी महिषासुर का विनाश करते हैं। इसीलिए 1925 के विजयादशमी के अवसर पर डॉक्टर जी ने संघ की स्थापना की। 17 लोगों को अपने घर के छत के ऊपर बैठ करके, फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर में बैठ करके, और उन्होंने बोलते हैं कि नाम भी नहीं दिया, अरे आज मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस शुरू कर रहा हूं, हम एक अच्छे लक्ष्य लेकर के चलेंगे, ऐसा करके और राष्ट्र देश को हम परम वैभव पर ले जाने के लिए हम संकल्प करेंगे, अच्छे अपने कलम धन को लगाएंगे। ऐसा उनका एक छोटे से भाषण के बाद संघ प्रारंभ होता है। लगभग 1 साल से के अंदर संघ का नाम पड़ जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और वो यात्रा, संघ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और उसी दृष्टि से डॉक्टर हेडगेवार ने 3 सूत्र दिए। पहला है कि राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए पहला चीज है व्यक्ति, आदमी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडिविजुअल। व्यक्ति का निर्माण करेंगे। एक व्यक्ति जब तक सही निर्मित नहीं होता है, तब राष्ट्र निर्माण की कल्पना, वो इमेजिनेशन एक कपोल कल्पित कल्पना रह जाएगा, वो साकार रूप धारण नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्ति के अंदर संस्कार देना, और संस्कार मतलब क्या है? व्यक्ति के अंदर अनुशासन का भाव, समर्पण का भाव देश समाज के प्रति, निस्वार्थ भाव और प्रामाणिकता, साथ साथ राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत, और अंत में अंतिम जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अखिल भारतीय दृष्टिकोण। कोई भाषा का कोई हो सकता है, कोई जाति का हो सकता है, कोई वर्ण का हो सकता है, किसी भी जाति जनजाति का हो सकता है, लेकिन वह दृष्टिकोण कैसा रखेगा, विजन कैसा रखेगा? राष्ट्रीय दृष्टिकोण।
जब व्यक्ति के साथ परिवार की लड़ाई होती है, इंटरेस्ट की, स्वार्थ की, तो परिवार का इंटरेस्ट को महत्व रखेगा। जब परिवार का इंटरेस्ट के साथ गांव का इंटरेस्ट का झमेला होता है, गांव का इंटरेस्ट यानी कि बृहत्तर स्वार्थ को ध्यान देगा। जब गांव का स्वार्थ जनपद के स्वार्थ के साथ टकराता है, जनपद का स्वार्थ को और उसमें ध्यान देगा। जब जनपद का स्वार्थ संपूर्ण हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र के स्वार्थ के साथ टकराता है, तो संपूर्ण भारत का स्वार्थ सर्वोपरि होगा। यह अखिल भारतीय दृष्टिकोण लेकर के स्वयंसेवक व्यक्ति निर्माण के रास्ते में चल पड़ा। ये पहला फेज है व्यक्ति निर्माण। दूसरा है समाज संगठन, हिंदू समाज का संगठन। चूंकि हिंदू समाज, हिंदू यहाँ की मूल निवासी है। आज अलग अलग प्रकार के पंथ के लोग हम देख रहे हैं, उपासना पद्धति के लोग देख रहे हैं हम, लेकिन अगर इतिहास में जाएंगे, सबके पूर्वज हिंदू ही थे। वह मूल धारा हिंदू धारा है। वह जो गंगोत्री है वो हिंदू है। इसीलिए गंगोत्री को ठीक करना मतलब संपूर्ण गंगा की धारा को ठीक करना। और इसीलिए जो लोग कहते हैं कि गंगा जमुनी संस्कृति, आप बताइए प्रयागराज में गंगा के साथ, माता गंगा के धारा के साथ जमुना नदी भी मिल जाती है, सरस्वती नदी भी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद नदी का नाम गंगा जमुना सरस्वती होती है या गंगा रहता है? वो गंगा रहता है। बहुत सारी उपनदी मिलती है, ट्रिब्यूटरीज मिलती है उसके साथ, लेकिन नाम वही गंगा। जब गंगा सागर में समुद्र के साथ विलीन होने तक उस नदी जो गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, वह नदी का नाम गंगा नदी ही है। इसलिए यह हिंदू समाज का संगठन जो कि मूल धारा है, उस धारा को संगठित करने का काम डॉक्टर जी आपने कंधे में ले लिया। समाज संगठन, हिंदू समाज का संगठन दूसरा। और तीसरा है संगठित हिंदू समाज के माध्यम से राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना। जब तक हमारा समाज संगठित नहीं रहेगा, हम भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर विदेशी षड्यंत्र के शिकार बनते जाएंगे। भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता है। इसीलिए व्यक्ति निर्माण नंबर 1, नंबर 2 हिंदू समाज संगठन, और तीसरा है संगठित समाज के माध्यम से राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना, सर्वोच्च उन्नति की सीमा पर ले जाना। सभी दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से परम वैभव के शिखर पर ले जाना, जो कभी भारत रहा है विश्व को। तो इस लक्ष्य को लेकर के 1925 में जो यात्रा प्रारंभ किए थे, वह यात्रा आज 100 वर्ष पूरा कर। आज 100 वर्ष पूर्ति के अवसर पर हम लोगों को 100 वर्ष में जो हमारा सारे जो क्रियाकलाप, इतिहास, उसको स्मरण करने का दिन है आज विजय सम्मेलन। तो इसीलिए आज इतिहास की तरफ हम थोड़ा सा इतिहास के पृष्ठ को थोड़ा सा हम बोलेंगे। आप सोचिए, संघ के बारे में जो भ्रांति, देश का सर्वोच्च विकास नहीं चाहते हैं, देश को बटा हुआ देखना चाहते हैं, वो संघ के बारे में क्या भ्रांति फैलाते हैं। आरएसएस तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ही नहीं लिया था। आप सुनते होंगे, आरएसएस तो गांधी हत्या का झूठा इल्जाम में दोष डाल के खाई में डुबा देना चाहते हैं। इस प्रकार के तमाम भ्रांतियां संघ के बारे में आप लोग सुनते होंगे, लेकिन सत्य क्या है? 1900 महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में 3 सत्याग्रह किए हैं। 1930 में उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन किए, सत्याग्रह किए, आईन अमान्य आंदोलन, और 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किए। 3 प्रमुख आंदोलन आप गांधी जी का इतिहास देखेंगे तो आपको मिलेगा। तीनों ये गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह जो हुए थे, बड़े सत्याग्रह, उसमें संघ के स्वयंसेवक शामिल थे। एक तो 1925 में संघ शुरू होने के कारण 1920-21 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, उसमें संघ का स्वयंसेवक तो नहीं थे, लेकिन संघ संस्थापक उस समय में एक सामान्य कार्यकर्ता उस समय कांग्रेस में थे। कांग्रेस एक नेशनल मूवमेंट था देश भक्ति का, और उसमें उन्होंने भाग लेकर के डॉक्टर जी ने 1921 में
नागपुर जेल में 1 वर्ष तक वो बिताए हैं जेल में। आपको आश्चर्य लगेगा, जो लोग संघ के ऊपर आरोप लगाते हैं संघ का कोई और रोल नहीं है, आपको आश्चर्य लगेगा 1921 में 1 साल जेल में, नागपुर जेल में रह करके जब जेल से निकलते हैं, उनके स्वागत में कौन आए थे, खड़े थे वहां? देश के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू वहां नागपुर जेल के सामने माला लेकर के खड़े थे डॉक्टर जी के स्वागत करने के लिए 1 साल जेल में। 1930-31 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, उस समय में भी डॉक्टर जी ने जंगल सत्याग्रह किए। नमक तो सारे देश के जो कोस्टल एरिया में नमक आंदोलन चला, लेकिन जंगल जो है बीच मध्य भारत में तो जंगल है, वहां तो समुद्र नहीं है, तो वहां जंगल का आइन को तोड़ना, जंगल सत्याग्रह में भाग लेकर के 9 महीना वो अकोला, महाराष्ट्र में अकोला स्थान पर अकोला जेल में वो जाकर के जेल दंड भुगते हैं, और बहुत सारे स्वयंसेवक भी उनके साथ जेल दंड में भाग लेते हैं। और 1940 में डॉक्टर जी का डेथ हो जाता है, लेकिन 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, उस क्विट इंडिया मूवमेंट में भी, भारत छोड़ो आंदोलन में भी संघ के स्वयंसेवक भाग लिए हैं। महाराष्ट्र के चिमूर जो जगह है, उस चिमूर जगह में जो गोली चली थी, उस गोली में जो मरे थे वो स्वयंसेवक ही थे। बहुत सारे स्वयंसेवक उसके देश भर में और भाग लिए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ। ये इतिहास आज लोग देख रहे हैं, या हमारे जो तथाकथित पाठ्य पुस्तक में उसको इरेज कर दिया गया, जानबूझ करके डिलीट किया गया है, संघ राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्रोत जो संघ को बदनाम करने के लिए। और दूसरा है कि आरोप आता है कि गांधी हत्याकांड में संघ का हाथ रहा है। स्वयं महात्मा गांधी जी ने वार्धा में जो गांधी आश्रम था, उस वार्धा गांधी आश्रम में एक दिन सुबह देखते हैं कि पास में एक जगह में टेंट लगा हुआ है, शिविर लगा हुआ है। कौन शिविर लगा, चलो देखते हैं। जाके देखते हैं कि संघ के स्वयंसेवक 1934 में वार्धा में एक जगह में मैदान में कैंप लगाए हैं, टेंट वगैरह लगा है। उनको आश्चर्य लगता है, कौन शुरू किया ये चीज? तो पता चलता है कि डॉक्टर हेडगेवार शुरू किए संघ संस्था। तो फिर उन्होंने एक प्रश्न, पहला प्रश्न पूछते हैं कि आपके यहाँ छुआछूत भेदभाव है क्या? सभी जाति के लोग यहाँ इस कैंप में नहीं क्या? तो वहां पे जो संस्था होकर के हिंदू समाज को सुरक्षित लाए थे, और हिंदू समाज यहाँ भारत के देश में, भौगोलिक भारत में जो नया भारत बना था, वहां पहुंचने के बाद उनका घर नहीं था, सब कुछ लूटे पीटे आए थे। उनको सही स्थान पर उनका, और रिलीफ कैंप में कैसे रहेंगे, उनको खाना पीना सब व्यवस्था संघ के स्वयंसेवक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो उस दृष्टि से संघ का जो भूमिका है, इसको समझने की आवश्यकता है। 1962 की चाइना लड़ाई, 10 वर्ष पहले 1951-52 में संघ के दूसरे सरसंघचालक गुरुजी ने देख लिए थे दृश्य, जिस समय में संपूर्ण भारत हिंदी चीनी भाई भाई का झूठा नारा में पस्त था। उस समय में संघ के द्वितीय सरसंघचालक घंटी बजाए कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर आक्रमण कर लिया है, कब्जा कर लिया है, और तिब्बत जो बफर स्टेट था, वो कब्जा होने के बाद उसका अगला पड़ाव कौन है? भारत है। इसीलिए भारत के शासन प्रशासन सतर्क हो जाना चाहिए, लेकिन भारत के शासन प्रशासन, भारत के नेतृत्व हिंदी चीनी नशा में डूबा हुआ था। जब श्री गुरुजी समाज को उद्घोष दिए कि सावधान रहो, उस समय में एक पत्रकार थे, एडिटर थे, उन्होंने अपने एडिटोरियल में लिखते हैं, परहैप्स आरएसएस सेकंड सरसंघचालक गुरु गोलवालकर हैज गॉन मैड। शायद गुरु गोलवालकर पागल हो गए हैं कि ये हिंदी चीनी की इतना बढ़िया जो महोत्सव भारत मना रहा है, और वो कह रहे हैं कि सावधान भारत। लेकिन 10 साल के बाद जब सचमुच भारत के ऊपर आक्रमण हो गया, चाइना के सैनिकों ने अरुणाचल के रास्ते में आकर के आसाम के मिसामारी तक पहुंच गए, हम यहाँ आसाम में हैं। और आप उस समय में जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या उद्घोष दिए थे ऑल इंडिया रेडियो में, क्षमा मांगे थे, अपने भरोसे में आसाम नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिए थे। उस समय में वही एडिटर जो एडिटोरियल लिखे थे कि गुरुजी पागल हो गए, तो वो एडिटोरियल बदल के लिखते हैं,
कि उस समय में गुरुजी को छोड़ करके बाकी सब लोग पागल थे, केवल गुरुजी ही सही दिमाग था। और उस समय में भी संघ के स्वयंसेवक रक्तदान करके स्वयं जो लड़ रहे हैं सैनिक, उनके साथ खड़ा होने का काम किए। और ये सब काम से नेहरू जी को पश्चाताप हुई, रिपेंटेशन हुआ। 1963 की रिपब्लिक डे पैरेड में जो हम देखते हैं कि इंडिया गेट के पास हर साल होता है, उसमें संघ के स्वयं सेवकों को स्वयं नेहरू जो 1948 में संघ को बैन कर दिए थे, उनका स्टेटमेंट बीबीसी में आया था नेहरू जी का, आई विल क्रश आरएसएस, मैं आरएसएस को पैर में कुचल दूंगा। ये जो स्टेटमेंट नेहरू जी का 1948 में था, वही नेहरू 1963 में आफ्टर सम इयर्स पश्चाताप करते हैं, संघ को रिपब्लिक डे पैरेड में बुलाते हैं। संघ के स्वयंसेवक गणवेश धारण करके 3000 से ऊपर संख्या में, जो हमारे आर्मी के साथ में दूसरे टुकड़ी में और पथ संचलन करता हुआ दृश्य आज कभी इसी वर्ष 1 अक्टूबर को जो डाक टिकट प्रधानमंत्री जी ने उन्मोचन किए हैं, उस डाक टिकट में वही चित्र है 1963 का रिपब्लिक डे में संघ का पैरेड में शामिल होने का चित्र है। उसी प्रकार 1965 में जिस समय में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उस समय में श्री गुरुजी को उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में भाग लेने के लिए, गुरुजी वाज द ओनली नॉन पॉलिटिकल पर्सन जो कि आए थे भाग लेकर के, और वहां शास्त्री जी को अच्छा सजेशन दिए थे, सुझाव दिए थे। 1971 की लड़ाई जिसमें बांग्लादेश अलग बना, उस समय में गुरुजी ने भविष्यवाणी की थी। जिस समय में भारत सेलिब्रेट कर रहा था कि बांग्लादेश बन गया, हम देखो पाकिस्तान, हमारे देश को पाकिस्तान भारत करके 2 टुकड़े में बांट लिए थे, हम अभी पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिए करके भारतीय लोग जो सेलिब्रेट कर रहे थे, उस समय में गुरुजी ने भविष्यवाणी की थी कि ये जो बांग्लादेश है, ये आगे चल करके भारत के लिए एक अवसर बनेगा, भारत में एक समस्या के रूप में ये खड़ा होगा। और आज हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार के वहां नरसंहार, हिंदू संहार हो रहा है। भाषा के आधार पर बनने वाली जो राष्ट्र है बांग्लादेश, वो हिंदू भी कौन क्या बांग्ला भाषा नहीं बोलते, उनके ऊपर क्यों अत्याचार हो रहा है? तो ये ध्यान कराता है कि जो लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, जो भाषा को जो राष्ट्रीयता से ज्यादा ऊपर रखते हैं, वो कैसा पश्चाताप कर रहे हैं, वहां बांग्लादेश का उदाहरण से पता चलता है। इसीलिए राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्रीय दृष्टिकोण ये संघ का दृष्टिकोण है। 1999 में जो कारगिल लड़ाई में भी संघ के स्वयंसेवकों ने ट्रैफिक पुलिस संभालने से लेकर के संघ आर्मी के लोगों के घर तक पहुंच करके उनका सुख दुख के बारे में सहभागी होने से लेकर के ये तमाम काम जिस समय में राष्ट्र आपदा में है, संघ के स्वयंसेवक करते हैं। ऐसे ही 1970 से 75 से 77 तक जो आपातकाल आया, वो आपातकाल न्यूज़ बोरा दर्पण स्टूडियो।